आइए हम सब प्रार्थना करें। Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. आइए कुछ समय प्रभु को धन्यवाद देंगे. Let's give him thanks. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. Thank you, Lord. Father, we thank you for this wonderful year that you've given us. पिता हम धन्यवाद करते इस अद्भुत साल के लिए जो आपने हमें दिया है, This exponential year. ये एक्सपोनेंशियल का वर्ष। You said, I will shake everything आपने कहा कि मैं हर एक चीज़ को कपाऊंगा so that everything comes in line with your plan. ताकि आपकी योजना के साथ हर एक चीज़ संरेखित हो। We thank you that for the wonderful time of praise and worship. हम धन्यवाद करते हैं अद्भुत समय का स्तुति आराधना के लिए। Thank you for the opportunity so we can come together physically to worship you. धन्यवाद कि आपने अवसर दिया कि हम एक साथ आकर शारीरिक रूप से आपकी आराधना कर सके। Thank you for everyone who's come here today. धन्यवाद हर उस व्यक्ति का जो आज यहाँ मौजूद है। Thank you for everyone who's watching us. धन्यवाद हर उस व्यक्ति के लिए जो हमें ऑनलाइन के माध्यम से देख रहा है। Thank you for the grace of our Lord Jesus Christ. धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का। Thank you for the love of our Father. हमारे पिता के प्रेम के लिए धन्यवाद। And thank you for the fellowship of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सहभागिता के लिए धन्यवाद। Minister to each and every one of us here today. हमें से हर एक व्यक्ति को आप उनकी सेवा टहल करें। This wonderful month of March, इस मार्च का अद्भुत महीना, the first day, उसका पहला दिन, we're expecting to see great goodness of God. हम अपेक्षा करते हैं हम परमेश्वर की उत्तम भलाई को देखेंगे। From the first to the last day of the March, we expect to see great goodness of God. मार्च के पहले दिन से मार्च के आखिर के दिन तक हम अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर की अद्भुत भलाई को देखेंगे। We cover this entire place in the blood of Jesus. हम इस पूरी जगह को यीशु के लहू से ढकते हैं। Thank you that angels are moving freely. धन्यवाद कि स्वर्गदूत यहाँ पे आज़ादी से घूम रहे हैं। Thank you for giving us the grace to focus and hear the word. धन्यवाद कि आपने हमें ध्यान देने का और वचन को सुनने का अनुग्रह दिया है। I give you all the glory सारी महिमा आपको देते हैं in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम। Amen. आमीन। I want to welcome all of you to church today. मैं सभी का आज कलीसिया में स्वागत करना चाहता हूँ। In the month of March, I want to talk about a new series. It's called the Fathers. In session 1, I want to talk about the Father's Provision, part 1. और मार्च के महीने में हम अलग श्रृंखला को जारी करेंगे और उसका पहला सत्र है और उसका नाम है पिता का प्रावधान भाग 1। The Father's Provision. पिता का प्रावधान। When we accepted Jesus as our Lord, God Almighty became our Father. He is our Abba Father. जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया तो परमेश्वर हमारा अब्बा पिता बन गया। Like we have a physical father, God Almighty has become our Father because we are born of Him. जैसे हमारे शारीरिक पिता है और जो परमेश्वर पिता है वो हमारा पिता बन गया क्योंकि हम उसकी द्वारा जन्मे हैं। So He is your Father. He is the Father of your spirit. We have a Father, a heavenly Father, and we call Him Abba. वो आपकी आत्मा का पिता बन गया, हमारा एक स्वर्गीय पिता है और उसे हम अब्बा करके पुकारते हैं। So just like you have earthly father, we also have heavenly Father, and He has provision. और जैसे आपके शारीरिक पिता है वैसे ही आपका एक स्वर्गीय पिता भी है जो आपको प्रावधान देता है। And our heavenly Father, He has a lot of resources. और हमारे स्वर्गीय पिता के पास बहुत सारे संसाधन हैं। He is not poor. वो गरीब नहीं, He is not stingy. वो कंजूस नहीं, He has a lot of resources. उसके बाद बहुत संसाधन है। And this entire month we'll be learning how to live by our Father's resources. और इस पूरे महीने में हम सीखेंगे कि हमारे पिता के प्रावधान के अनुसार
अनुसार कैसे जिए। Many times we are looking at our own resources, कई बार हम अपने खुद के संसाधनों की ओर देखते हैं and our resources are so limited. और हमारे संसाधन बहुत सीमित है, But we have a dad, पर हमारा एक पिता है and he has unlimited resources. और उसके पास असीमित संसाधन है। And so we are learning how to live by the Father's provision. तो हम सीख रहे हैं कि हमें पिता के प्रावधान के अनुसार कैसे जीना है। Yeah, you know, like little children, whatever they need, they just go to their dad and they ask from their dad. जैसे कि बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो जाके अपने पिताजी से मांगते हैं। It's only when you grow up that you don't go to your dad. ये तभी होता है जब आप बड़े हो जाते हैं, आप तब अपने पिता के पास नहीं जाते। You feel like you can handle it alone. आपको ऐसा लगता है कि आप खुद संभाल सकते हैं, And so, but he is still your dad. पर वो फिर भी आपका पिता है And he has a lot of resources. और उसके पास बहुत सारे संसाधन हैं, More than anyone can ever imagine. Our Father God has a lot of resources. इससे कोई कल्पना कर सकता है उसकी भी परे उसके पास है। हमारे अब्बा पिता के पास बहुत सारे संसाधन हैं। Your own resources may be limited, and that can cause you a lot of stress because you look at your resources and it is less and it is getting less, and you can get depressed. और आपके पास भी आपके खुद का संसाधन हो सकता है और बहुत छोटा सकता है और दिन ब दिन कम होता जा रहा है, कम हो रहा है और आप और चिंतित होते हैं। So your dad has some resources. तो आपके पिता के पास कुछ संसाधन है। Look at some of the verses. कुछ वचनों को देखेंगे हम। Psalms 24:1. भजन संहिता 24 का 1। Even in prayer we say Father. प्रार्थना में भी हम पिता बोलते हैं। We say Father in the name of Jesus. हम कहते हैं पिता यीशु के नाम से। So he says the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. वह कहता है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। That means your Father, everything, the earth and everything that's in the earth, it belongs to him. तो आपके पिता के जो कुछ भी इस पृथ्वी में है, जो कुछ भी इस पृथ्वी में मौजूद है, वो सब आपके पिता का है। The earth is your Father's पृथ्वी आपके पिता की है and the fullness thereof, और जो उसकी परिपूर्णता है, the world and they that dwell therein. और जो कुछ उसमें है और जो भी उसमें निवास करते हैं वो सब उसके है। So your dad is very rich. तो आपके पिता बहुत धनवान है। We are learning this month. इस महीने में हम सीख रहे हैं और इसको ध्यान से सुनिए. We are learning how not to live by our resources but live by our dad's resources. That's what we're going to learn. हम इस महीने में सीखेंगे कि हमें अपने संसाधन के ऊपर नहीं वरन हमारे पिता के संसाधन के ऊपर जीना है। Your own resources will frustrate you. आपके खुद के संसाधन आपको बहुत निराश कर देंगे, But that's how orphans live. पर ऐसे अनाथ जीते हैं Because orphans don't have a father. क्योंकि अनाथों के पास उनका कोई पिता नहीं होता, So they have to have their own resources. तो उन्हें अपने खुद के संसाधन को लेकर आना पड़ता है। But those that have a father, they live by their dad's resources. पर जिनका पिता है वो अपने पिता के संसाधन के अनुसार जीते हैं। सब बोलिए मैं अनाथ नहीं हूँ. मैं अनाथ नहीं हूँ। Okay, so you have a dad. तो आपका एक पिता है। The earth belongs to him. पृथ्वी उसकी है। The fullness of the earth belongs to him. जो कुछ पृथ्वी में वो सब उसका है। Next verse. अगला वचन Psalms 50:10. For every beast of the forest is mine, the cattle upon 1,000 hills. भजन संहिता 50 का 10। क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। It doesn't matter who has it. इससे फर्क नहीं पड़ता वो किसके है। It doesn't matter who has it. इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके है। He says, every beast of the forest is mine. वो कहता है कि पहाड़ों के हर एक जानवर मेरे हैं। Now you may have some beasts. आपके पास कुछ पशु हो सकते हैं। It doesn't belong to you. It belongs to God. वो आपके नहीं, वो आपके पिता के हैं। Amen. It doesn't matter who has it. इससे फर्क नहीं पड़ता किसका है। Jesus wanted to go to Jerusalem. He said, go there. There is a animal. Bring him to me. यीशु मसीह को यरूशलेम जाना था और वो कह रहे थे कि वहां पे एक गधा बांधा है, उसे मेरी ओर लेकर आओ।
And when someone says, "Why are you untying it?" और अगर कोई तुम्हें पूछे कि तुम इसे क्यों खोल रहे हो, he said, "Tell them the Lord needs it." और तो उसने कहा कि उनसे कहो कि प्रभु को इसकी जरूरत है। In simple words, the owner needs it. इसका साधारण शब्दों में जो मालिक है उसको जरूरत है उस चीज की। Every beast of the forest is mine. वन के सारे जीव जंतु मेरे A हैं, cattle upon 1,000 hills is mine. हजारों पहाड़ों के जानवर भी मेरे हैं। अयूब के बारे में लिखा गया है कि पूर्व में सबसे धनवान व्यक्ति अयूब था, उसके पास 7,000 ऊंट थे। इनके पास 7,000 नहीं है, इनके पूरा ऊंट इनका ही है। हाउ कैन ही बी पुअर? इज ही पुअर? वो गरीब कैसा हो सकता है? क्या वो गरीब है? Job had some sheep, आयुब के पास कुछ भेड़ बकरियां थे, some donkey, कुछ गधे थे, some servants. कुछ दास थे। He became the richest in the east. वो पूर्व में सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। Not one of the richest, the richest. धनवानों में से एक नहीं, धनवान, सबसे बड़ा धनवान वो बन गया। But look at God, every beast of the forest is mine. परमेश्वर कहता है कि वन के सारे जीव जंतु मेरे हैं। The cattle upon 1,000 hills belongs to me. हजारों पहाड़ों के जानवर भी मेरे हैं। Why should this excite us? Because it's talking about our dad. ये हमें उत्तेजित क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये हमें हमारे पिता के बारे में बताता है। You know, when your father gets a promotion, जब आपके पिताजी को पदोन्नति मिलता है, his salary was 30,000 उनका पगार पहले 30,000 था, and his salary became 80,000. अभी उनका पगार 80,000 हो गया। The entire family gets excited. पूरा परिवार खुश हो जाता है। Why? क्यों? Wife gets excited. पत्नी खुश हो जाती है, Children get excited. बच्चे खुश हो जाते थे। Because dad got it. Dad got it. We all got it. इसका क्योंकि पिताजी को मिला, पिताजी को मिला, इसका आदर सबको मिला। Have you seen when a father gives a testimony, everybody gets excited? जब भी कोई भी एक पिता गवाही को देता है, सब उत्तेजित हो जाते हैं It's amazing. और बहुत अद्भुत So है। this should excite us because it talks about our dad. और ये हमें उत्तेजित करना चाहिए क्योंकि ये हमें पिता के बारे में बताते हैं। It will destroy the consciousness of lack from your mind. ये आपके मानसिकता में से जो कमी घटी की मानसिकता है उसे नष्ट कर देगी, Exactly like Jesus. यीशु मसीह की तरह। Next verse. अगला वचन, Look at his statements. Some of the statements I've taken. कुछ वाक्य रचना को मैंने लिया है, There are so much more. इससे भी बहुत ज्यादा है। Haggai 2:8, our father says, "The silver is mine, the gold is mine, says the Lord of hosts." हगै 2:8, हमारा पिता कहता है, चांदी तो मेरा है और सोना भी मेरा है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। So all the silver in the world, all the gold in the world, it belongs to our dad. तो जो भी सोना चांदी इस पूरे ब्रह्मांड में है वो सब हमारे पिता का है And we are born of him. और हम उसके द्वारा जन्मे हैं। So he has lot of resources. तो उसके पास बहुत सारे संसाधन हैं। Jesus said, "Your father feeds the birds because he has resources." यीशु ने कहा कि तुम्हारा पिता पक्षियों को खाना खिलाता है। He said, "Your father clothes the flowers. He clothes the flowers." उसने कहा तुम्हारा पिता फूलों को सजाता है। He said, "For 40 years I took care of the Israelites in the desert. They were not hungry." उसने कहा कि 40 साल उसने इजरायलियों की देखभाल की, वो भी रेगिस्तान में, और वो भूखे नहीं थे। An orphan mentality is refuses to look at the father and just looks at himself. एक अनाथ की मानसिकता, वो पिता के ओर नहीं देखता, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ओर देखता है। A orphan mentality is a big problem. और जो ये अनाथ वाली मानसिकता है ये बहुत बड़ी समस्या है। They say ये सब सुनने में अच्छा लगता है। वो लोग कहते हैं ये सब सुनने में अच्छा लगता है। बोला प्रैक्टिकल बनो पास्टर, प्रैक्टिकल बनो थोड़ा। बोले ये सुनने में बहुत अच्छा है ये सब। No, see, that's a problem. This is, the word is not for entertainment. It tells us what is real. ये वचन जो है ये हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है, ये हमें अपनी वास्तविकता को बताता है। He says the silver is mine and the gold. So orphan mentality is a problem. Slave mentality is another big problem. अनाथ वाली मानसिकता एक समस्या है और गुलाम वाली मानसिकता भी एक बड़ी समस्या है। So all the silver in the world, all the gold in the world belongs to our dad. तो जितना भी सोना पूरे जगत में, जितना भी चांदी पूरे जगत में है, वो सब हमारे पिता का है। Now no matter where it is, where they have hidden it under the water, they have hidden it somewhere, it doesn't matter. All of the gold
all of the silver, it belongs to God, our dad. भले उन्होंने कहा भी छुपाया, उन्होंने पानी के नीचे छुपाया, कहीं भी छुपाया, वो सबका जो सोना चांदी है वो सब हमारे पिता का है। Orphan mentality, don't believe it. अनाथ वाली मानसिकता इन बातों पर विश्वास नहीं करती। They said it's not up to him, it's up to me. वो कहते हैं कि उस पर नहीं है, या हम पर निर्भर है, And it's a big problem. और ये बहुत बड़ी समस्या Okay, है। some of the points. Number one, कुछ मुद्दे हम देखेंगे। पहला, please understand, the father has unlimited provision for every one of his children. पिता के प्रत्येक संतान के लिए असीमित प्रावधान है। Everyone, no partiality. Every one of us, there is unlimited provision for every one of us. प्रत्येक परमेश्वर, हम जितने भी सारे जो परमेश्वर की संतान, हम सबके लिए असीमित प्रावधान है। Doesn't matter whether you're working or not. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप काम करते या नहीं करते। Doesn't matter whether you're educated or not. नहीं फर्क पड़ता कि आप शिक्षित है अशिक्षित है। Doesn't matter whether you have a Bible college certificate or not. इससे नहीं फर्क पड़ता कि आपके पास बाइबल कॉलेज का सर्टिफिकेट है या नहीं है। If you believe Jesus, अगर आपने यीशु पर विश्वास किया you है, are a son of God. आप परमेश्वर की पुत्र है, And God Almighty is your father. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका पिता है। Your father has unlimited provision for every one of us. और आपके पिता के पास हम सबके लिए असीमित प्रावधान है। Enough, more than enough for every one of us. हम सबके लिए पर्याप्त से भी अधिक है। By virtue of your birth in God's house, you have unlimited provision for every one of us. परमेश्वर के घर में जन्म लेने के आधारित आपके पास, हम सबके पास असीमित प्रावधान है। There is so much available for each one of us. We can't even imagine how much is available. हम सबके लिए इतना चीजें उपलब्ध है कि हम उनकी बातों की कल्पना भी नहीं कर सकते कितना उपलब्ध है। But we don't want to look at that. पर हमें उसको नहीं देखना। We want to look at the little we have. हमें जो हमारे पास थोड़ा बहुत है, हमें उसको देखना है। We don't want to look at the ocean of provision we have. We want to look at the bucket we have. हमें जो महासागर, प्रावधान का महासागर जो हमारे सामने है, हमें उसे नहीं देखना, पर हमारे पास जो छोटी बाल्टी है, हमें उसे देखना है। That is an orphan mentality और ये एक अनार्थ वाली मानसिकता है that refuses to look to the Father. जो पिता की ओर देखने के लिए इनकार करती है। So the Father God has unlimited. His provisions never get over. It's unlimited. उसके सावधान असीमित है, वो कभी खत्म नहीं होते। You cannot exhaust His resources. आप उसके प्रावधान को खत्म नहीं कर सकते। बर्तन कम पड़ जाएगा लेकिन तेल खत्म नहीं होगा. Vessels will be over, but oil will not stop. बर्तन खत्म हो जाएंगे पर तेल रुकेगा नहीं। So He has unlimited provision. तो उसके पास असीमित प्रावधान है। So we must realize that our Father God has unlimited provision. तो हमें ये बात को जानना है कि हमारे स्वर्गीय पिता के पास असीमित प्रावधान है। One project of the ark cannot exhaust the resources of our Father. आर्क का एक कार्य जो है वो हमारे पिता के संसाधनों को खत्म नहीं कर सकता। One marriage conference we do that does not exhaust the resources of our जो Father. हम एक विवाह का सम्मेलन यहाँ करते हैं वो पिता के संसाधनों को खत्म नहीं करता। It doesn't even scratch His pocket. वो उसके बटुए को मानो उसको खरोचता भी नहीं है। So much He has. कितना है उसके पास। So please remember, the Father has unlimited provision for everyone of His children. पिता के प्रत्येक संतान के लिए उसके पास असीमित प्रावधान है। And He shows no partiality. और वो बिल्कुल पक्षपाती नहीं है। किसी का पक्षपात नहीं करता. Colors don't bother Him. रंग उसको रंग से फर्क नहीं पड़ता। Certificates don't bother Him. सर्टिफिकेट से उसको फर्क नहीं पड़ता। Height, weight don't bother Him. वजन का उससे फर्क नहीं पड़ता। What you know, there was this man called blind Bartimaeus. एक व्यक्ति था, उसका नाम था अंधा बर्तिमाई, And he was begging. और वो भीख मांग रहा था। And so Jesus was going in Jericho. और यीशु मसीह यरीहो जा रहा था। And Bartimaeus started shouting, "Son of David, have mercy on me." और बर्तिमाई जो था वो चिल्लाने लगा कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। Now as Jesus was walking, suddenly Jesus stopped. और यीशु मसीह चल रहे थे और वो अचानक रुक गए। And so I questioned, why did He stop?
तो मैंने सवाल किया कि आप क्यों रुक गए? Did he stop because Bartimaeus was blind? No. क्या वो इसलिए रुका क्योंकि बरतीमाई जो था वो अंधा था? नहीं। Did he stop because Bartimaeus was a beggar? क्या वो इसलिए रुका क्योंकि बरतीमाई एक भिखारी था? No. नहीं। He stopped because of faith. वो विश्वास के कारण रुका। That means he doesn't respond to the situation or the problem. He responds to faith. He responds to faith. वो परिस्थिति या समस्या को प्रतिक्रिया नहीं देता, वो उसका प्रतिक्रिया सिर्फ विश्वास के लिए है। Now the one who is using a faith, even if that person is a beggar, it doesn't matter because God shows no partiality. अभी जो व्यक्ति उस विश्वास को लागू कर रहा है, भले ही वो एक भिखारी क्यों ना हो, परमेश्वर उसकी सुनेगा क्योंकि परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। Who pays attention to a beggar? कौन है जो एक भिखारी के ऊपर ध्यान देता है? No one pays attention to a beggar, कोई भी भिखारी के ऊपर ध्यान नहीं देता, but faith gets the attention. पर विश्वास उस ध्यान को लेकर आता है। So remember, the Father has unlimited provision for every one of us. तो याद रखिए कि पिता के पास हम सबके लिए असीमित प्रावधान है। आपके मन में बैठ जाए, there is no lack. आपके मन में ऐसा बैठ जाए कि आपके पास कोई कमी घटी नहीं है। The Lord told me recently, परमेश्वर ने मुझे हाल ही में कहा, He said, you know, just live by my resources. सिर्फ मेरे संसाधन के अनुसार जियो। Don't try to live by your resources are very chota resources. तुम्हारे संसाधन बहुत छोटे, उनके अनुसार मत जियो। One wind will come, it will go. एक हवा का झोंका आएगा, सब लेके चले जाएगा। और इधर से आया, बाकी भी गया। He said, you know, you look at my resources. Your resources don't. You look at my resources. I'm very rich. उसने कहा कि तुम मेरे संसाधनों को देखो, मैं बहुत धनवान हूँ। He has unlimited resources for every one of his children. उसके पास अपने संतान के हर एक बच्चे के लिए सबसे ज्यादा, सबके लिए असीमित प्रावधान है। This is why Jesus will never have a consciousness of lack. इसीलिए यीशु मसीह के पास कभी भी कमी घटी वाली मानसिकता नहीं थी, Because he was conscious of the Father's resources. क्योंकि वो पिता के संसाधनों के बारे में वो जागरूक था। So remember, brothers and sisters, the Father has unlimited provision for every one of his children. तो भाइयों बहनों, आप याद रखिए कि पिता के प्रत्येक संतान के लिए असीमित प्रावधान है, And he loves you as much as he loves Jesus. और वो आपसे उतना ही प्रेम करता जितना वो यीशु से करता है। Next slide. अगला स्लाइड। The Father's provision is available to you at all times, in every place and in every situation. पिता का प्रावधान आपके लिए हर समय, हर स्थान और हर परिस्थिति में उपलब्ध है। Doesn't matter where you are. इससे नहीं फर्क पड़ता आप कहाँ पे है, Doesn't matter which country you are in. इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन से देश में है, Doesn't matter which location you are in. इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी जगह पर है, Doesn't matter whether it's early morning or midnight. His provision is available to you at all times. इससे नहीं फर्क पड़ता कि सवेरे की बात है, शाम की बात है, उसका प्रावधान आपके लिए हर जगह उपलब्ध है। It's not limited to a specific location that I have to go to this country to get it. It's not true. वो किसी जगह के बारे में सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको उस जगह पर जाना पड़ेगा पिता के प्रावधान के लिए, ऐसा नहीं है। Like I thought that I have to go to US to get it. ऐसे मुझे लगा था कि मुझे यूएसए जाना पड़ेगा उसे प्राप्त करने के लिए। Obviously, I did not have the revelation. I did not know the teachings. हाँ, मुझे शिक्षाएं पता नहीं थी, मुझे प्रकाशन नहीं था। It is available to you at all times, not just Sunday. वो आपके लिए हर समय उपलब्ध है, सिर्फ रविवार को नहीं। It is available to you in every place, no matter where you are. In every place, it's available. वो आपके लिए हर स्थान में उपलब्ध है, इससे नहीं फर्क पड़ता कि कहाँ है। And in every situation, no matter how tough the situation is, it's available for you in every situation. और हर परिस्थिति में आपके लिए उपलब्ध है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि स्थिति कितनी कठिन क्यों ना हो, पर वो चीज आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। You can be going through a tough situation. आप शायद बहुत कठिन स्थिति से गुजर रहे हो, Resources are available if you want it. संसाधन आपके लिए उपलब्ध है अगर आपको चाहिए। If you want it, it's available. No matter what the situation, it's available. भले कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो आपके लिए हमेशा मौजूद है। In a desert,
there were 12 baskets overflowing in a desert. एक रेगिस्तान में 12 टोकरियां उमड़ रही थी, 12 टोकरियां। When the industry was down, जब पूरी इंडस्ट्री नीचे गिर चुकी when थी, the market was down, पूरा मार्केट गिर चुका था, Peter's boat was overflowing with fishes. It's available anytime, anywhere it's available. Father's provision is available. पतरस की नाव मछलियों से उमड़ रही थी। वो हर समय हर जगह पे आपके लिए पिता का प्रावधान उपलब्ध है। So let's not limit it to a time. तो हम इसे समय के अनुसार सीमित ना करें। Let's not limit it to a place. तो हम इसे स्थान पर सीमित ना करें, Let's not limit it to a situation. और हम इसे ना ही किसी परिस्थिति के अनुसार सीमित करें, Because it's Father's provision, it's available to you at all times. क्योंकि ये पिता का प्रावधान है और वो आपके लिए हर समय उपलब्ध है। Now it depends, are you going to look at his resources or your resources, which is your choice? अब ये निर्भर करता है कि क्या आप उसके प्रावधान को देखेंगे, आपके प्रावधान को देखेंगे, ये आपकी चुनाव है। He has a lot of resources. उसके बाद बहुत सारे संसाधन हैं। He's not a poor person. वो कोई गरीब व्यक्ति नहीं है And he's not a stingy person. और ना ही वो कंजूस व्यक्ति He है। is extremely wealthy. वो अत्यधिक धनवान है All of us are his children and he has portion for each one of us. और हम सब उसके बच्चे हैं और हम सब के लिए उसने एक भाग रखा है। There were 12 tribes of Israel. इजराइल के 12 गोत्र थे, So God used Joshua to divide the land for 12 tribes. और परमेश्वर ने यहोशू का इस्तेमाल किया ताकि वो 12 गोत्रों में जमीन को बांटे। सबके लिए है. सबके लिए है, Everybody has it. सबके लिए है। And so we've been living by the Father's provision. It's a good life. और हम पिता के प्रावधान के अनुसार जी रहे हैं और ये बहुत अच्छा जीवन है। There is nothing to boast about. इसके बारे में कुछ भी घमंड करने लायक नहीं है। So I encourage you, live by the Father's provision. तो मैं आपको उत्तेजित करता हूँ कि आप पिता के प्रावधान के अनुसार जिए। It's available. वो उपलब्ध है, It's available to you. वो आपके लिए उपलब्ध है, It's available. वो उपलब्ध है। You may be struggling financially, but Father's resources is available. अब शायद से आर्थिक रूप में आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, पर पिता के प्रावधान आपके लिए उपलब्ध है। And remember one thing about God, He doesn't respond to you because you're blind. और परमेश्वर के बारे में एक चीज याद रखिए कि वो प्रतिक्रिया इसलिए नहीं देगा क्योंकि आप अंधे हैं। You know, why did Jesus stop? Did he stop because Bartimaeus was blind? No, he stopped because of faith. क्या यीशु इसलिए रुका क्योंकि बर्तिमै अंधा था? नहीं, वो उसके विश्वास के कारण रुका। He didn't respond to a problem. He responds to faith. उसने प्रतिक्रिया एक समस्या क्यों नहीं ली, उसने प्रतिक्रिया विश्वास को दी। So the Father's provision is available. If you need it, it's available. तो पिता का प्रावधान उपलब्ध है, अगर आपको चाहिए तो वो आपके लिए उपलब्ध है। And someone said, if it's available, then just put it on me. तो कोई कहता है कि अगर उपलब्ध है तो मेरे ऊपर डाल दो। He can't do it वो ऐसा नहीं करता because he only responds to faith. क्योंकि वो सिर्फ विश्वास को प्रतिक्रिया देता है। Very important. बहुत महत्वपूर्ण है। Otherwise, people might think, नहीं तो लोग सोचेंगे I have a father, मेरा एक पिता है, he's very rich, बहुत धनवान है, then why am I struggling? तो फिर मैं क्यों संघर्ष कर रहा हूँ? Because our eyes are not on him. Our eyes is on our bucket resources. क्योंकि हमारी आंखें उस पर नहीं है, हमारी आंखें हमारी जो बाल्टी में रखे संसाधन है उन पर है। We ignore the ocean हम उस महासागर को नजरअंदाज कर देते हैं to focus on a bucket. एक बाल्टी पर ध्यान देने के लिए, And we protect the bucket और हम उस बाल्टी को पूरा रक्षा करते हैं उसकी, where the ocean belongs to us. जहां पे पूरा महासागर हमारा है। So remember, brothers and sisters, the Father's provision is available to you at all times, in every place, in every situation. तो भाइयों बहनों याद रखिए कि पिता का प्रावधान आपके लिए हर समय, हर स्थान में, हर स्थिति में आपके लिए उपलब्ध है। Okay, finally, one more point. All of the Father's provision, इसको ध्यान से देखिए. All of the Father's provision is hidden in Christ. पिता का संपूर्ण प्रावधान, Yes. पूरा का पूरा प्रावधान मसीह में निहित या छुपा हुआ है। और आप मसीह में हैं. आमेन।
That means wherever you are, the provision is available. जहां कहीं भी आप है वहां प्रावधान उपलब्ध है। Amen. आमेन। You see, all of the Father's provision is hidden in Christ. पिता का संपूर्ण प्रावधान मसीह में छुपा हुआ है। It's not in a location. वो किसी जगह में छुपा हुआ नहीं है, It is hidden in Christ. वो मसीह में छुपा हुआ The है। Father took all of his provision and he hid it in Christ. पिता ने अपना सारा प्रावधान लिया और उसे मसीह में छुपा दिया। And you are in Christ. और आप मसीह में हैं। सब बोलिए मैं मसीह में हूं। मैं मसीह में हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए मैं मसीह में हूं। मैं मसीह में हूँ। See, all of the Father's provision is hidden in Christ. पिता का संपूर्ण प्रावधान मसीह में छुपा है। It's already in वो you. पहले से आपके अंदर है। All of it, whatever you need, whatever you have to pay, whatever project there is, all of the Father's provision is right in Christ. जिस किसी भी चीज की आपको जरूरत, जो इसका आपको भुगतान करना है, आपके कार्य के लिए जितना लगने वाला है, वो सब आपके अंदर है, क्योंकि पिता ने संपूर्ण प्रावधान मसीह में छुपाया है। You know, when we don't have it, we look outside. जब हमारे पास नहीं होता तब हम बाहर देखते हैं। That's a problem. यही समस्या है। Why do we look outside? हम बाहर क्यों देखते हैं? Because we don't have it. कि हमारे पास खुद नहीं है। If we have it, we won't look outside. अगर हमारे पास है तो हम बाहर नहीं दिखेंगे। Okay. All of the Father's provision is hidden in Christ. पिता का संपूर्ण प्रावधान मसीह में निहित है। All of his cattle, all of his gold, all of his connections, all of his grace, all of it is hidden in Christ. उसके सारे पशु पक्षी, उसका सारा सोना चांदी, सारे संपर्क, सारा अनुग्रह, सब का सब कुछ मसीह में छुपा हुआ है। It's hidden in Christ. सब मसीह में छुपा हुआ है। 1 Corinthians 1:30. पहला कुरिन्ती 1:30। इसको ध्यान से देखिए, just to let you know how rich we are. ये बस आपको बताने के लिए है कि हम कितने धनवान हैं। 1 Corinthians 1:30 says, पहला कुरिन्तियों 1:30 कहता है, it says, but of God you are in Christ Jesus. वो कहता है कि परंतु परमेश्वर की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। So I question, where am I? तो मैं सवाल करता हूँ कि मैं कहाँ हूँ? I am in Christ. मैं मसीह में हूँ। Okay, very important. That's what the word says. And the word is the truth. और वचन सत्य है। The word is not giving us a suggestion so that you will give an approval and then accept it. The word is the truth. वचन सुझाव नहीं दे रहा ताकि आप उसे हाँ कर देंगे और फिर वो हो जाएगा, नहीं, वचन सत्य है। The word tells us what is our reality. वचन हमें बताता है कि हमारी वास्तविकता क्या है। But of God you are in Christ Jesus. परंतु परमेश्वर की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। Who of God is made unto us four things. Christ is made unto us four things. और परमेश्वर की ओर से उसने हमारे लिए 4 चीजें ठहराई। Yeah. Christ is our wisdom. मसीह हमारा ज्ञान है। That means all the wisdom that you need to live your life is in Christ and Christ is in you. इसका अर्थ जितना ज्ञान, जितना बुद्धि आपको लगेगा अपना जीवन जीने में, वो सब का सब मसीह में है। Wisdom is not outside. ज्ञान बाहर नहीं है। Whatever God has called you to do, जो भी परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है, whatever your responsibilities are, जितनी भी जिम्मेदारियां आपके पास है, all of the wisdom that is needed to do it, God has made Christ wisdom for you. जो भी बुद्धि या ज्ञान आपको चाहिए वो चीजें करने में, परमेश्वर ने मसीह को वो ज्ञान ठहराया है। Now, it's already in you. और वो पहले से आपके अंदर Now, है। if you don't have it, then you ask for it. अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर उसे मांगेंगे। That's why seeing it is so important. इसलिए देखना बहुत जरूरी है Oh Lord, give me wisdom. कि पिता मुझे बुद्धि दे। Nice prayer. अच्छी प्रार्थना है। Oh Lord, हे प्रभु give me wisdom. मुझे बुद्धि दे। Nice prayer. अच्छी प्रार्थना है। जेम्स में लिखा है, अगर बुद्धि की कमी हो तो मांग लो बुद्धि. It's nice prayer. But let's go a little higher. तो अब थोड़ा हम ऊपर जाएंगे। He said, Christ who is in you has been made wisdom for you. वो कहता है कि मसीह जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे लिए ज्ञान ठहराया गया है। So एक विश्वासी प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे बुद्धि दे। दे क्यों बोल रहा है? क्योंकि नहीं है। अगर होता तो दे नहीं बोलता, होता तो बोलता है।
बोल रहा है नहीं है तो दे, प्रभु दे, मतलब नहीं है इसके पास, इसको दिखा नहीं, अब तो मांगते जा रहा है, दे प्रभु दे। दूसरा है विश्वासी, सी इट इज जस्ट अबाउट ग्रोथ, उन्नति के बारे में। दूसरा विश्वासी है, वो प्रभु से ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि प्रभु दे, वो बोल रहा है प्रभु धन्यवाद, मसीह मेरी बुद्धि है, मैं बुद्धि में चल रहा हूं, और वो अन्य भाषा में चालू करता है, और अन्य भाषा में जैसे बोल रहा है, परमेश्वर की बुद्धि उसके मन में आजाद होती है। Amen. See, there is different levels of faith. One is asking, पिछले 5 साल से मांग रहे हैं वो बुद्धि के लिए, प्रभु दिया नहीं अब तक, प्रभु दे बुद्धि। और दूसरा है another believer, he's not asking for wisdom, he says Christ is my wisdom. वो एक दूसरा विश्वासी बुद्धि की मांग नहीं कर रहा, वो कहता है मसीह मेरी बुद्धि है। So all of the Father's wisdom is in you. तो पिता का सारा बुद्धि या ज्ञान जो है वो सब आपके अंदर है। So Christ is your wisdom. तो मसीह आपकी बुद्धि है, Christ is your righteousness. मसीह आपकी धार्मिकता है। That means your ability to live right comes from Christ. इसका अर्थ है कि एक सही जीवन जीने की जो क्षमता है वो मसीह से आती है, It doesn't come from a location. वो कोई जगह से नहीं आती। It doesn't come from external things. Your ability to live right comes from the person who lives in you. वो क्षमता कहीं बाहर से नहीं आती, जो क्षमता आपको सही जीने के लिए लगती है वो उस व्यक्ति से आती है जो आपके अंदर रहता है। See, I believe if we see right, our confession and our prayer will change. मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हम सही देखना शुरू करें तो हमारी प्रार्थनाएं और हमारे अंगीकार बदल जाएंगे। Please don't settle with low level Christ life. कृपया करके जो निचले स्तर का मसीह का जीवन है आप उसके साथ आप सेटल मत हो जाए, उसके साथ आप रह मत जाइए। I know this second standard faith level, I am happy there. Don't stay there. Please go up. There is so much more to learn. There is so much height. There is so much dimensions. Don't sit at second standard Christ life. There is so much more. आप कहते हैं कि दूसरे साल का जो ये मसीह का बुद्धि है मुझे इसमें अच्छा लगता है, बहुत ऊपर है जाने के लिए, आप कृपया और ऊपर जाइए। आप निचले स्तर के लिए आप सहमत रहकर आप उसमें बने मत रहिए। He said, Christ is my wisdom. वो कहता है कि मसीह मेरा बुद्धि है। So where is my wisdom? तो मेरी बुद्धि कहाँ है? My wisdom is Christ. मेरा बुद्धि मसीह है। सब बोलिए मेरी बुद्धि मसीह है। मेरी बुद्धि मसीह है। दूसरा सवाल, मसीह कहां पर है? मेरे अंदर। सो बुद्धि कहां पर है? मेरे अंदर। सो हाउ कैन यू बी पुअर? यू रिच? तो आप गरीब कैसे रह सकते हैं? Then he आप says, धनवान हैं। Christ is my righteousness. फिर वो कहता है कि मसीह मेरी धार्मिकता है, Christ is my sanctification. मसीह मेरी पवित्रता है। That means the ability to live holy doesn't come from a location, it comes from within you. इसका अर्थ है कि पवित्र जीवन जीने की क्षमता कहीं बाहर से किसी जगह से नहीं आती, वो आपके अंदर से आती है। Then he says, Christ is your redemption. फिर वो कहता है कि मसीह आपका छुटकारा है। All of God's wisdom, all of God's righteousness is hidden in Christ, and Christ is in you. परमेश्वर का सारा बुद्धि, परमेश्वर के सारा धार्मिकता सब मसीह में छुपा हुआ है और मसीह आप में है। Ephesians 1:3. इफिसियों 1:3। इसको देखिए, blessed be the God and Father, our Father, who has blessed us. The Father has blessed us with all spiritual blessing. Everything He has, जो कुछ भी पिता के पास है, He has blessed us in the heavenly places in Christ. हमारे प्रभु मसीह यीशु के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की सारी आत्मिक आशीषें दी है। He put it all in Christ. उसने सब मसीह में डाल दिया। Think about this statement. He says, everything the Father has, He has hidden it in Christ. जो कुछ भी पिता के पास है वो सब उसने मसीह में छुपा दिया। You know, many people, because they don't know these things, they think that Jesus means एक दिन स्वर्ग जाएंगे हम लोग। बहुत सारे लोग जो इस बारे में नहीं जानते वो सोचते हैं कि एक दिन यीशु का अर्थ समझते हैं कि एक दिन कभी हम स्वर्ग जाएंगे। That's the only thing they know. सिर्फ यही चीज जानते हैं वो, एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे। एक दिन हम स्वर्ग चले जाएंगे। They don't know that He is Father's provision embodied. वो नहीं जानते कि वो पिता का प्रावधान मांस लहू में है।
He says, the Father has blessed us with all of His provision. He has hidden it in Christ, and Christ is in you. उसने कहा पिता ने हमें आशीष किया है और सारा जो कुछ उसके पास है उसने सब मसीह में छुपाया है और मसीह हमारे अंदर है। Next verse. अगला वचन Colossians 2:3, इसको वापस देखिए। In whom are hid. कुलोसिय 2:3 जिसमें सारा भंडार छिपा है। No. In Him are hidden. उसमें छिपा है। Amazing. In Him are hidden. क्या hidden है? What is hidden? उसमें क्या छिपा हुआ है? All the treasures. सब मेरे साथ बोलिए, all the treasures. ऑल द ट्रेजर, हिंदी में बोलिए सारे भंडार। सारे भंडार, कितने भंडार? सारे किसके भंडार? उसके, और परमेश्वर के भंडार। परमेश्वर के जितने भंडार हैं वो सारे भंडार किसमें छुपे हुए हैं? मसीह में। आप कहां पर हैं? मसीह में। You know, please don't see yourself, I don't have it. कृपया करके अपने आप को ऐसा ना देखे कि मेरे पास है ही नहीं। आपके पास है। Don't say you don't have it. ऐसा मत कहे कि मेरे पास नहीं है। You have it. आपके पास है। आपके पास है। अगर वचन सच है, अगर वचन सच है तो आपके पास है। Amen. If the word is true, अगर ये सिर्फ थियरी है, अपना प्रैक्टिकल लाइफ अलग होता है ब्रदर। That is then we can help you. But if this is the truth, if this is the truth of your life, अगर ये आपके जीवन का सत्य है तो आपके पास नहीं का सवाल ही नहीं उठता, आपके पास है। Amen. You have it. आपके पास है। If this is true, if this is not true, then it's all a theory for बोला चलो मंडे संडे देखते हैं बाद में। अगर ये आपके लिए सत्य है तो सच है, अगर आपके लिए सिर्फ किताबी ज्ञान है तो ये आपके लिए ऐसा है कि चलो अगले रविवार देखा जाएगा। In whom are hid? उसमें छिपा है। Who hid it? किसने छुपाया? The Father hid it. परमेश्वर ने छुपाया। All the treasures of wisdom and knowledge. सारे बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार उसमें छुपाए He गए हैं। hid it in Christ. उसने वो मसीह में छुपाया है Christ is in us. और मसीह हम में है। सब बोलिए hallelujah. हालेलुया। Now 2 Corinthians 1:20. दूसरा कुरिन्थियों 1:20। You know the body of Christ is going to be so wealthy. परमेश्वर मसीह की देह कितनी ज्यादा धनवान होने वाली है And it will be struggle free and stress free. और ये संघर्ष रहित होगा और ये तनाव रहित होगा, Because we don't live by our resources. क्योंकि हम अपने संसाधन के द्वारा नहीं जीते। We live by our dad's resources. हम अपने पिता के संसाधन के अनुसार जीते हैं, Our father's resources. हमारे पिता के संसाधन के अनुसार, Just like Jesus Christ. यीशु मसीह की तरह। Okay, 2 Corinthians 1:20 says, for all the promises of God. परमेश्वर की कितनी प्रतिज्ञाएं? सारी प्रतिज्ञाएं in Him are yes, in Christ. In Him, amen, to the glory of God by us. और वे सब उसी में हाँ के साथ, Yes. इसीलिए उसी के द्वारा आमीन भी हुई है। देखिए, वापस देखिए, इसको ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार को लेकर कहां पे छुपाया? मसीह में। परमेश्वर ने सारी प्रतिज्ञा को लेकर कहां पे रख दिया? मसीह में। और फिर आपको उठा के कहां रख दिया? मसीह में। We are so rich. हम बहुत धनवान हैं। We are so rich. हम बहुत धनवान हैं। So don't see yourself as someone who doesn't have it. तो अपने आप को ऐसा ना देखिए कि ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास कुछ नहीं है। You have it. आपके पास है। You don't just have it, you have so much. आपके पास सिर्फ है नहीं, आपके पास बहुत सारा है। Because unless you see it, you can't talk right. क्योंकि जब तक आप देख नहीं पाते आप तब तक सही बोल नहीं पाएंगे। Anytime you hear a person talking, they will show you, they will reveal to you वो क्या देख रहे हैं। अगर जब आप किसी व्यक्ति को बोलते हो सुनते हैं तो वो आपको प्रकट कर देंगे कि वो क्या देख पा रहे हैं। I always say I have it. मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे पास है। Not by looking at my bank account. मेरे बैंक अकाउंट को देखकर नहीं बोलता। बैंक अकाउंट 4-5 होंगे, है कि नहीं? अकाउंट खोलो, फोन करते रहते हैं वैसे भी। क्रेडिट कार्ड भी होगा 10-15। I don't look at the bank account and say I have it. मैं बैंक अकाउंट को देख के नहीं बोलता कि मेरे पास है। I don't look at the my wallet and say I have it. मैं अपने बटुए को देख के नहीं बोलता कि मेरे पास है। I'm in Christ. मैं मसीह में हूँ। I have it. मेरे पास है। I have it. मेरे पास है। I'm not asking God for it. I have it. मैं परमेश्वर को और मांग नहीं रहा, मेरे पास है। देखिए, आप तभी बोलेंगे आपके पास है जब आपने देखा,
जब तक आप देख नहीं पाएंगे आप बोल नहीं पाएंगे, और देखने के लिए शिक्षा में आना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षाएं नई आंखें देती हैं। Amen. टीचिंग्स गिव यू न्यू आईज। शिक्षाएं आपको नई आंखें देती है। इसीलिए जो भी वचन में नहीं बैठता, आप उनके शब्दों को देखिए, लुक एट देयर वर्ड्स, दे विल नेवर से दे हैव इट, because they don't have the eyes to see, because they have not sat on the teachings. जो व्यक्ति वचन पर नहीं बैठता वो कभी नहीं बोलेगा कि मेरे पास है, क्योंकि उनके पास वो आंखें नहीं है, वो कभी नहीं बोलेंगे मेरे पास है। For all the promises, सारी प्रतिज्ञाएं he fulfilled it in Christ, and now you are in Christ. उसने सारी प्रतिज्ञा मसीह में पूरी की और आप भी मसीह में है। Finally, आखिर में this is a big series. I want to break it and I want to show you. ये बहुत बड़ी श्रृंखला है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा। Look at his statement, his words. आप उसके शब्दों को देखिए, उसके वाक्य रचनाओं को देखिए। He said, all that the Father has is mine. जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। Amazing. अद्भुत। He said, all that the Father has is mine. वो कहता है जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। Don't say you don't have it. ऐसा मत बोलिए कि आपके पास नहीं है। I always have it. मेरे पास हमेशा है। I always have it. मेरे पास हमेशा है। Don't see yourself as one who doesn't have it. अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति की तरह ना देखे जिसके पास कुछ नहीं है। That's not humility. ये दीनता नहीं है, That's ignorance. ये अज्ञानता है। He said, all that the Father has are mine. No wonder he didn't have a poverty mentality. जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है कि उसके पास गरीबी वाली मानसिकता नहीं थी। He didn't have a lack mentality. उसके पास कमी घटी वाली मानसिकता नहीं थी। He didn't have a I don't have mentality. उसके पास मेरे पास नहीं है ऐसी मानसिकता नहीं थी। Because look at his statement. आप उसके वाक्य रचना को देखिए। Statements are always a product of sight. जो वाक्य रचना है वो हमेशा आप जो देखते हैं उन चीजों के उत्पादन होते हैं। जो भी एक व्यक्ति बोलता है वो इसीलिए बोल रहा है क्योंकि वो जो देख रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति क्या देख रहा है, उसके शब्दों को आप देखिए। संडे को नहीं, संडे को सब अच्छा ही बोलते हैं। When he is in the house, जब घर पे है, जब परिस्थितियां कठिन है, चैलेंजेस हैं, उनके शब्दों को देखिए और शब्दों से पता चल जाएगा कि वो क्या देख रहे हैं। Amen. So look at Jesus. All things the Father has are mine. यीशु कहता है जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। So what is Jesus teaching us? तो यीशु मसीह हमें क्या बता रहे हैं? Brothers and sisters, this is not theory. भाई और बहनों, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। If we are thinking that this is for Sunday, Monday to Friday अपना ही चलता है, you are deceived. अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ रविवार के लिए है, सोमवार से शुक्रवार शनिवार तो हमारा चलता है, तो आप भटकाए गए हैं। This is the truth. ये सत्य है। वचन सत्य है, वचन सत्य है। This is the truth. ये सत्य है। All things the Father has are mine. That means I live by the resources of my dad. जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। इसका अर्थ है कि मैं अपने पिता के संसाधन के अनुसार जीता हूँ। I say this last statement. मैं ये आखिर की वाक्य रचना कहूंगा। Your own resources will fall short. आपकी No matter how much you have, your own resources will fall short. भले आपके पास कितना कुछ हो, आपके खुद के संसाधन हैं वो कभी ना कभी खत्म हो And जाएंगे। you will try to hold it like anybody. You will try to hold it as much as you hold it, and like water, you don't know where it is going. और सबकी तरह आप भी उसे पकड़ने का प्रयास करेंगे। आप नहीं जानते कि पानी की तरह कहाँ बह जाता है। You know, you can't hold water. पता नहीं कहाँ से निकल जाता है। आप पानी को पकड़ नहीं सकते, आपको नहीं पता कहाँ से निकल जाता है। If you live by your own resources, one day you're going to get frustrated. अगर आप अपने खुद के संसाधनों के अनुसार जिएंगे तो एक ना एक दिन आप निराश हो जाएंगे। But your daddy's resources are available. पर आपके पिता के संसाधन आपके लिए उपलब्ध है। But it's a choice that we have to make, that we will live by his resources. पर ये चुनाव है जो हमें करना है कि हम अपने पिता के संसाधन के अनुसार जिएंगे। Unlimited resources. असीमित संसाधन, Never ending resources. कभी ना खत्म होने वाले संसाधन। He can take care of the entire world's bills, yet not even a scratch on his resources. वो पूरे ब्रह्मांड के जितने लोग हैं सबके बिलों का भुगतान वो कर सकता है और फिर भी उसके बटवे को खरोचता भी नहीं है। It's all for you. ये सब आपके लिए है। What would a father do keeping all it
to himself, it's all for his children. एक पिता अपने ओर रख के चीजों को क्या करेगा, वो सब उसके बच्चों के लिए है, It's all for us. वो सब हमारे लिए है। So long back, तो बहुत पहले I decided to live by the Father's resources. मैंने निर्णय किया कि मैं अपने पिता के संसाधन के अनुसार जीऊंगा। So I don't have sleeping problem. तो मुझे कोई नींद में समस्या नहीं है, I don't have financial tensions. मेरे पास आर्थिक तनाव नहीं है, We don't have financial issues. हमारे पास आर्थिक समस्याएं भी नहीं I है, don't have financial fear. हमें आर्थिक भय भी नहीं है। What's going to happen tomorrow? कल क्या होगा, How the money will come? पैसा कैसे आएगा, Who will do it? कौन करेगा, Who will pay the bills? भुगतान कौन करेगा। We don't have all this. हमारे पास ये सब नहीं है। All this is only for those who are living by their own resources. ये सब उनके लिए जो अपने खुद के संसाधन के अनुसार जीते हैं। And your resources, it's like water. You don't know where it is going. आपके संसाधन जो है पानी की तरह, आपको नहीं पता कहाँ बह जाएंगे, So live by your dad's resources. इसलिए अपने पिता के संसाधन के अनुसार जिए। It's available. वो आपके लिए उपलब्ध है, It's like an ocean. वो एक महासागर की It's तरह है, available for everyone. वो हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। So long back, I decided I'm going to live by my daddy's resources. तो बहुत पहले मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने पिता के संसाधन के अनुसार जीऊंगा, I will live by your resources. मैं आपके संसाधन के अनुसार जीऊंगा। That made me a hard worker. उसने मुझे एक परिश्रमी व्यक्ति बनाया। Ministry is hard work. सेवा का एक बहुत परिश्रम वाला काम है, Writing books is hard work. किताबें लिखना मेहनत वाला काम है, Traveling and doing conferences is hard work. यात्रा करके कॉन्फ्रेंस करना एक कठिन कार्य है। But when you look at your father's resources, you will work even hard. पर जब अपने पिता के संसाधनों को देखते हैं तो आप और ज्यादा मेहनत करेंगे। There is no limit. कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है. There is no limit and there is no shortage. कोई सीमा नहीं है और कोई कमी घटी नहीं है, There is no shortage. कोई कमी घटी नहीं There है, is more than enough. पर्याप्त से अधिक है सबके लिए। आपका नाम लिखा हुआ है चीजों के ऊपर. Your name is written आपका नाम लिखा है on that provision. क्योंकि फादर आप नहीं ले रहे थे तो आपको उठा के बाजू वाले को दे दिया, ऐसा नहीं करेगा प्रभु. Some parents can do it. ये नहीं खा रहा तो उसको दे दिया. Daddy is not like that. पिता ऐसा नहीं है, आपका सुरक्षित है, नाम लिखा हुआ है, आपका रखा हुआ है. आप सोच रहा है पिता एक दिन आएगा घूम फिर के, उड़ाव पुत्र की तरह घूम के आएगा. हाँ? तो वो उधर ही है, वो प्रावधान जो केवल विश्वास से आता है. इट कम्स बाय, इट्स ऑल वेटिंग फॉर यू. टेक इट एज सून एज यू कैन. वो सब आपके लिए राह देख रहा, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लीजिए। लेट्स प्रे. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you for what we have heard today. पिता हम धन्यवाद करते हैं जो कुछ आज हमने सुना। We thank you that your word is true. हम धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन सत्य है, Your word is true. आपका वचन सत्य है, It is the truth of our lives. ये हमारे जीवन का सत्य है। We have a father हमारे पास एक पिता है and he's very rich. और वो अत्यधिक धनवान है, And all of his resources belong to us. और उसके सारे संसाधन हमारे हैं। It is at our disposal. वो हमारे लिए है, Anytime, किसी भी समय, anywhere, कहीं भी, in any situation. और हर परिस्थिति में। So Father, help us live by your resources. तो पिता हमारी मदद कर ताकि हम तेरे संसाधनों के अनुसार So जिए, that in our earthly life, ताकि हमारे इस पृथ्वी के जीवन में we will be focused on you and on the assignments you have given us. ताकि हम अपने इस जीवन में आपके ऊपर ध्यान दे और जो कार्य आपने हमें दिए उसके ऊपर ध्यान दे। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Amen.